Hello everyone. In this video, we'll talk about a channel जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिक क्विक टेस्ट। सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हो 33.1 के। इनिशिएटिव बाय रेणुका SBI PO। अब ये SBI PO है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मोस्टली हर एक एग्ज़ाम क्लियर किया इनका, मतलब इन्होंने क्लियर किया। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फोकस करेंगे सिर्फ एक वीडियो पे पहले। तो लेट्स फोकस ऑन RRB क्लर्क स्कोर कार्ड। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो। Hi, this is Renuka, an educator of content reasoning. As you all are requested to share the scores I got in RRB mains, so this is my scorecard of RRB clerk mains last year. Here I am going to share with you all the scores and a short review of my strategy. Hope it will be helpful to you all. So let's get started. As you all can see, I got 38.75 in reasoning and 22.75 in quant, and this is not weighted score, this is only obtained score. Here you can see in RRB exam, you have to multiply with 1.25 whatever the marks you got in quant and reasoning, and for English, Hindi and general awareness, you have to multiply with 1, and for computer, you have to multiply with 0.5. That's how your total scores will be calculated. And if I multiply 38.75 with 1.25, then my marks in reasoning are 48.4, and in quant 22.75 into 1.25 will be 28.4. And as you all know, quant and reasoning both are my favorite subjects. I just practiced mains level puzzles and DI as much as I can, and I used to practice from memory based papers more rather than mock test. If you want mains level classes for quant and reasoning, you can subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon to get notification of updated videos. And in computer I got 34, which will be 17 after multiplying with 0.5. And for computer, after completing a computer course in an institute, I practiced MCQs most of the time for bank exams. And if you also want to practice MCQs, I provided a PDF of concept theories and 1000 plus MCQs. For the details of the PDF, click on the link given in description box. And in general awareness, I got 32.5, for which I practiced 300 monthly MCQs and revised it every morning and well before the exam. And if you all want to practice 300 MCQs, I provided PDF of current affairs with 300 monthly MCQs. In total, 1700 plus MCQs from April to September. And to know the details and download PDF, the link is given in description box. And in English, I got 23.75, and if a candidate just clear all the chapters of English section and read newspaper on a daily basis, it will be sufficient to score more. If you don't want to read editorial, that's perfectly fine. Just read whatever you like, because reading is important in English section. And that's how in total I got 150.05, which is 75.02 out of 100, and that's वाओ, आप देख सकते हैं क्वांट्स कितनी अच्छी है इनकी। कैलकुलेशन भी देख लो किस तरीके से 150.05 ये फिगर आया है निकल के। बाकी आप खुद होशियार हो, कैलकुलेट कर लेना कि क्या एग्जैक्ट फिगर्स होने चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करके 150.05 आया, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा। अब मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन क्या होती है वो आप देखो। ये थी इनकी कैलकुलेशन जो कि 150.05 है। इन्होंने इग्नोर कर दिया, एक सिंपल सी बात जो है इग्नोर कर दी है। ये इन्होंने ऐड नहीं किया साइड में। अगर ऐड करती तो 150.05 तो कभी नहीं आता निकल के, जबकि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए था स्कोर, जो कि मैंने कैलकुलेट करके भी रखा है। आप यहाँ देखो, अगर सब सही से किया जाए तो स्कोर निकल के आएगा 150.125, और जो वीडियो में दिखाया वो है 150.05। तो स्कोर कभी रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस एक ही रीज़न से हुआ है, वो है इग्नोर किया गया है ये जो फिगर है 48.4375। ये 0.4375 ये इग्नोर किया गया है, और डायरेक्टली 48.4 लिख दिया और 28.4 लिख दिया, जिस वजह से ये टोटल फिगर गलत आ गया। और ये मैंने वेरीफाई भी कर लिया बाकी चैनल के थ्रू, जैसे डैट कूल वाइब करके एक चैनल है,
और वहाँ भी मैंने चेक किया तो एग्जैक्ट फिगर मैच हो रहे थे। 0.437 है तो वो राउंड ऑफ होके 44 हो गया, तो ये सही है। और एक चैनल था, आप सब जानते हो, ज़ीरो करके है, वहाँ भी मैंने वेरीफाई किया तो 134.25 था, जो कि एग्जैक्ट वेरिफिकेशन के साथ मैच कर रहा है, काफ़ी कुछ सही है। तो आप खुद देख सकते हो कि क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये मिस्टेक कोई नोट कर सके। नंबर्स आने चाहिए थे 150.125 और आए हैं 150.05। ये देख के भी काफ़ी लोग डाउट करेंगे या मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि दैट आई एम रॉन्ग। तो जस्ट एक सिंपल सी क्लिप या ये पिक मैं शो करता हूँ, आप देख लो कि क्या डिफरेंस है। जो एक रियल स्कोर कार्ड होता है ना, इफ़ यू सी ए रियल स्कोर कार्ड, तो आप देखोगे यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल्स के बाद जो नीचे स्कोर्स होते हैं, एक लाइन होती है, ये आप देख सकते हो, एक मतलब 4 यहाँ पर लाइन्स हैं, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू ब्ला ब्ला ब्ला, ये लाइन होती है अगर आप क्लियर करते हो। और इन्होंने जो दिखाया है वहाँ ये लाइन मिसिंग है ही नहीं, सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, किस बैंक में हुआ है, किस स्टेट से, और स्टेट कौन हाइड करता है बताओ आप? हर एक स्कोर कार्ड में स्टेट भी हाइड किया है, तो आप खुद समझ जाओ। फ़िलहाल आप और भी वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे सारी वीडियोस है, यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप फ़िलहाल इन सब बातों को देखना सीखो कि कैसे नोट किया जाता है, छोटी छोटी डिटेल्स, और काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं इनको। जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट का भी हुआ था इनका क्लियर, किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैम व्हाट्स योर स्कोर इन आरबीआई असिस्टेंट मेंस सेक्शन वाइज, मैम विल नेवर शो यू। तो ऐसी काफ़ी बातें हैं, आप खुद चैनल पे जाओ और हर एक वीडियो देखो, अगर आपको सही लगता है तो इट्स ओके, और अगर कुछ मिस्टेक्स निकल के आती हैं तो पॉइंट आउट करो, नॉट अ बिग डील। ऑल राइट गाइज, सी यू लेटर, टेक केयर।